Hello, dear friends, and welcome to the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey, my dear friends. We have many unsung heroes, many achievers across the world. Several people have overcome the hardships in their lives and they have faced so many challenges, and they are here today to share their story on the International Fab Talks. We want all of you to be strong like them, to be achievers, and not to give up in life. No matter what is your chosen field, it could be art, painting, drawing, it could be studies, it could be science. I mean, when I say studies, it could be science, maths, economics, chartered accountancy as well. And yes, we today have a beautiful chartered accountant with us. He's joining us all the way from Chennai, a nice person who's ready to share his journey with us and make us understand the importance of this life. Dear sir, welcome to the session. Thank you very much. Yeah, thank you, madam. Thank you, sir. My dear friends, I haven't yet introduced his name. He is Mr. Jain, a chartered accountant, and of course, his full name we will share with you in a few minutes. Dear sir, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया था, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank Welcome. My dear friends, have you seen people being so humble and down to earth? They respect other people's time, they respect their work, and they respect the life given to them by the Almighty. In the same way, you have to respect your life and live and give back to your family and society. So let's welcome our special guest is Mr. Jain. Sir, with your permission, I go ahead and I share your profile, sir. Yeah, Thank you, sir. Thank you very much. My dear friends, as I said, he's Mr. Jain. Apart from that, he is somebody else. Let's get that right. He is Mr. K.L. Jain. C.A.K.L. Jain. That is Chartered Accountant K.L. Jain. And he's a person who's very polite. You can approach the person and connect with him on an everyday basis. And you could also avail the services that he gives. तो बहुत अच्छे इंसान है, बड़े नेक दिल के हैं, अच्छे बातें भी करते हैं. अगर आपका कोई काम है connected with chartered accountancy or any of the things that you'd like to do, especially the GST and all of that, sir is very proficient in that. You can connect with him. So let's introduce our special celebrity in an official way. He is C.A.K.L. Jain and he's completed his BCom honors and as well as FCA, ISA. He has done it from ICAI. The full form we'll share with you later. And he is a professional. And ask me what, as I earlier mentioned, you get that right. A practicing chartered accountant, friends. And he is also the proprietor of KLJ and Associates. That is KL Jain and Associates, Chennai. And he specializes in GST. That is the specialization. And friends, apart from that, and his office is located at Subramanian Street, Kilpauk, Chennai, Tamil Nadu, India. Apart from that, he has been holding various memberships and positions, which we'll be sharing with you now in just a few seconds. Yes, dear friends. Friends, he's been the president of the Madras Junior Chamber JC in 1995. Zone trainer and counselor Indian Union Chambers 1997, secretary Jodhpur Association 2018 to 20, member of the Sanskriti Cultural Foundation 2017 onwards till date, and Rotary Club of Madras Esplanade treasurer in 1997 and 98 and as well 2005 and 6. And is also the RCME director youth service for the last 10 years. Rotary Club of Madras Esplanade President 2008-9. Associate Chairman RI District 3230 for the past 3 years. And President Pehchan Youth Association 2002-2003. He's also the president of Shri Jaimal Jain Rashtriya Yuvak Parishad, that is 2003 to 2007. He was the secretary and treasurer of Shri S.S. Jain Sangh, Kilpauk, from 2007 till now. That's really beautiful. Member in the Rajasthani Association, Tamil Nadu, 2007 and 8. And his family consists of a beautiful union of his beautiful wife, who's also an investment consultant. He has a son, and he has completed his studies at IIM Bangalore, and he has a daughter-in-law as well. She's a chartered accountant, final year. And it's a beautiful family, and they are contributing to the growth of the society in a very positive way. And when you speak to Jain sir, बड़े नेक दिल के इंसान है. मुझे मैंने जब कनेक्ट करा था सर से, तो एकदम कनेक्ट हो पाए थे हम. अच्छे वार्म है, एक्सेप्टेबल है,
एक्सेप्टिंग, he accepts you and gives you the respect. जितना एक इंसान को एक सम्मान देना है, जैन सर वहां है और यहाँ पर हम हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे ये इंटरव्यू। आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। डियर सर, आप जब कनेक्ट हुए थे, आप तो बड़े नेक दिल के हैं, और आपकी जो बातें हैं आगे वाले इंसान को मान मर्यादा, दैट्स द हाइट, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का मदद भी करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों को वो आदर देते हैं। तो आप इंटरनेशनल फैब टॉक्स का इनविटेशन स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच सर। We go ahead. My friends, we go ahead with the first round of the interview. It will be a little in Hindi and in English. I try to refine my Hindi as well, hopefully. Sir, who is the real Jain sir? Who is KL Jain साहब? कौन है the real Jain साहब? जी sir. The real Jain Saab is me only, and I'm a very good professional and a very good person, and beautifully, if I can tell you, I am very humorous, and I always give the humorous talks. I make the environment very lively, very lightly. When we are at meetings also, I crack jokes and say that yes, always you be laughing. When you laugh, then only you can live your life very happily. That is what I can say. You can call me as a good comedian or a good stand-up comedian, like that also. People think me, and but I'm committed to my profession as well as. Yes, that's a wonderful hobby too. That's really nice. Yeah. A stand-up comedian, a person who's humorous, and a person who wants to make you happy, not to always be stressed out, because life is all of challenges. Yes. Everybody has challenges. Apart from these challenges, how to bounce back, how to have humor in the right sense. Yes, that is KL Jain sir. Thank you sir for sharing the other part of you. वो तो हमें नहीं मालूम था, तो वो आपने बता दिया। That's really very nice. सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना, वो भी एक अच्छी बात है, और वो ही जिंदगी है। दूसरों को हंसाना और दूसरों को खुश रखना, साथ ही साथ काम भी करना है। वेरी नाइस। डियर सर, आपका इंस्पिरेशन कौन था ये फील्ड में आने के लिए? आप सीए हैं ना अभी, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? तो आपका इंस्पिरेशन कौन है सर? Yeah, the first inspiration was my elder brother, Mr. Shantila Lunkar. He told me that yes, you have to do the chartered accountancy course. So he was the first man who inspired me and go ahead with chartered accountancy. The second person who supported and made me real chartered accountant was my another brother, Mr. Mavid Munot. He was in the Chennai, and I was in Jodhpur that time. Then we connected and say that you please send him to the Bombay for 2 years, then 1.5 year with me. So like that, I completed my articleship. And the second person I can tell you, my guru, my brother, my philosopher, guide, I can call him, is Mr. Mavid Munot. Thank you, sir. Thank you for sharing the inspirations in your life, and that's really nice. You are also an inspiration to many of the youngsters out there who would like to become chartered accountants, who are interested in this beautiful field. Yes, you can be the next KL Jain, sir. Yeah. Dear sir, do you have any beautiful memories about your childhood? If you'd like to share that with us, any incident that is very green in your mind? Yeah. Yes. The first, when I was childhood, still I remember. Good question you have asked me. When I think I was in the 8th or 9th standard. I was at a very small village called Khangta. It is in Jodhpur district of Rajasthan. And in the schools, I was so good enough. And my English was not so good. And even you know that Rajasthan, the level of English is very low. So what happened was on the day of 26th January, that is our Republic Day. On that teacher, the English teacher, I remember his name. So he called me and say that you have to speak on the day of the Republic Day.
but the condition he has put it that you should speak in English. But even 8th and 9th standard students, we didn't have that much good English. Then uh, he said, okay, no problem. I will write down your speech in Hindi. You just say that independence was not written as INDEPendence, or republic was not written as REPUBLIC. It is republic, republic. That is Hindi. So he has written the my speech in Hindi, and yes, then on the day of the celebration, Republic Day celebration at school, they called me on the stage and say that now the KLJN will speak in about the Republic Day in English. So I gave the speech because it was a written speech and very easy for me. So I read it in Hindi, but the real language was is in English. It was speaking language was in English. So after that, the thing happened was the lot of people, the villagers came to the celebration day. So in that, the old, I remember 2, 3 old men there. They were very close to our family. They took me on their hands and thrown away up. My KLJN has given a speech in English. My great son, like that. The villagers were so supportive, no. Still, those they have thrown me in the air and catching me again, like that. So still I remember the villagers who supported that say yes, I think he's a good man and he can come up in like that. I mean, that was the confidence they had in me that time. So that is the beautiful memory, still a green memory in my mind, and I cherish that memory always. I get a good enthusiasm from that incident. Yes, that's a beautiful incident. I could really create that picture where they were Yeah. like throwing you up in the hair and holding you back Correct, and correct. encouraging you, and were very happy that you've given that beautiful speech. That's really nice to be encouraged by your teachers and as well as the community around you. The Yeah. people around you is really great. That's very nice. Any other incident, sir? This is a beautiful positive incident. ऐसा कोई नटखट का incident ऐसा आपको anything like that where you Not- were very naughty or Yeah, something? correct. The naughty, we were very naughty at the when we were at village. I still remember one day there was I mean, maybe it was fifth or sixth standard student. Then that time we were fighting each other. No, the students fight each other. That one of that we have. I mean, I would have slapped one small boy, and that incident has become a very big one, and community fought that, but it's a very bad incident. We had it, but because of we didn't know in childhood, the mistakes happens. So mistake happened, and then we could realize at later stage, said that because of you slapped a small boy, and see that the people of the villages were fighting. That is the incident which I remember. Yes, sir. Mm. Thank you, sir. Thank you for sharing that. That was really very nice. Dear sir, your profession being a chartered accountant, what are the ways that you face your challenges? You might be facing challenges. A lot of us face in all our professions. We all face challenges. In your profession, what are the major challenges, and how do you focus on your challenges to bring balance in it? Yeah. See, the practicing chartered accountants, the first and foremost, what they face is the clientele base. The first thing was when you have good clientele, then you can come up in your life. To build up the clientele base, it requires a lot of your understanding, a lot of efforts, and lot of contacts building measures. Those measures only can build up your good practice. So I started my practice in 1992. Then to start a profession, it takes a lot of time. For starting of say maybe 1 or 2 years, we didn't have a clientele base.
Then in 1995, I became the president of Indian Junior, the Madras Junior Chamber. We call it JCs. So when I was during that period, what happened was the once your name is built up, when your name started good in your community, definitely you will get a good clientele base and you will get a good professional practice too. During that period, we had around 160 projects all over the Chennai, and we thought, okay, let us make it a big one. And I worked like every day. We have a period of 1 year as presidency in the Madras JCs. So we had a good period, and we conducted around 160 projects during that year. That brought my name in the society and made it a non-chartered accountant in our in the Chennai whole as a whole, particularly in our community. The people came to know, yes, somebody is good here. Let us let us take the services of KLJ. So the first and foremost, when you build up your contact, you get a good clientele. The second is your subject knowledge. The subject knowledge should be, you should be very good at the subject, whichever practice you want to do you want to do the direct tax practice or income tax practice or GST practice, that is indirect taxes? So you should be a master in the GST practice. So the second challenge which comes before us, we have a good knowledge of book knowledge of the GST Act, or maybe that time it was TN VAT Act, or it was a CST Act. But practicals are something different. Now bringing the booking knowledge to the practical knowledge, that comes a big challenge for every chartered accountant. And after maybe a practice of 3-4 years, you come to know the nitty-gritty of the act, the law, wherein how to mold and how to read in between the lines. All those steps are challenging steps for all chartered accountants. So if you come across the first your good contacts, second the good subject knowledge of the knowledge of the subject proper, and proper understanding of the act, can bring you to a good level of your practice. These are these third small things I cannot discuss, but I can tell you, maybe the you need the employee base. Sometimes you will not get the article trainees, or sometimes you don't get the employees. So maybe that during that period, I think you have to stretch more and work for up to say 10 o'clock night. And when the particularly when the last dates are approaching fast, during that period also you have to do a good job for you. So these are the major challenges a practicing chartered accountant faces. And now when the time changes, now the after a build up, when you build up your good practice, all these problems can be overcome. So very nicely we explained everything step by step. Yeah. Very nice. I really like that. You put it everything very clearly with lots of clarity. That's what we need, friends. A lot of clarity from experienced people. And any of the people out there, youngsters, if you'd like to become a CA, this is the process that you have to follow. Improve your contacts, improve the subject knowledge. And you have to stretch your beyond certain limits. And when the time requires, maybe you'll not have employees to help you at certain times, or maybe the workload is too heavy. You have to give your very best. Beautifully explained, sir. So yes, subject knowledge is also very important. Contacts are important. You should establish yourself and work hard to create a beautiful space in the society. Dear sir, any special आप stand up, you're not talking in Hindi, you're not sharing anything in Hindi. एक दो बातें हिंदी में भी हो जाए हमारे लिए. हो जाएगी. यस जी जी, मैं वही तो हिंदी में कब बात करेंगे सर, वेट कर रही हूँ मैं. हाँ. यस सर. सबसे आपका फेवरेट किताब हिंदी में या इंग्लिश में बताइए. अभी तो किताब का जमाना तो नहीं रहा मैडम. जी. अभी जो जमाना है वो है कपिल शो का. सो द कॉमेडी विथ कपिल शो. So a great show, and I admire him, and the way he speaks and way he connects to the people, and the flirting and the stuff what the couple have.
a very good comedian. And as far as book is concerned, I don't have that books, but generally in the comedy, comedy area, uh, what happens was the jokes or the things when you listen from others, or when you come across a situation and immediately you crack the joke, that makes everybody laugh around you, and you make your the vibration very clear. The people talking to you or standing with you will definitely will laugh. तो मेरे हिसाब से तो ये जो कॉमेडी का जो है किताब तो नहीं है, लेकिन हम लोग सिचुएशन अगर आती है उस सिचुएशन पे ही हम लोग जोक रख देते हैं, और एवरीबडी फील्स वेरी हैप्पी। और यस, जो भी मेरे दोस्त थे वो सब यही बोलते हैं, यार जब केल के साथ खड़े रहते हैं ना तो मजा आ जाता है। मतलब दे वांट माय कंपनी टू बी विथ मी, क्योंकि मैं माहौल को एकदम इतना हल्का और इतना नुमाइंदा बना देता हूँ। हंस हंस के वो लोग लोटपोट हो जाते हैं और सबको मजा आ जाता है। जी हाँ। दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जी सर, आप के एल जैन, राइट? या मैं तो आपको जैन सर इंट्रोड्यूस कर दी स्टार्टिंग में, तो के और एल, कैन यू फुल्ली एलैबोरेट व्हाट इज आर दीस करेक्ट लेटर्स? है। ये क्या नहीं, पूरा नाम मेरा कन्हैया लाल जैन है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ह शब्द है, जो हिंदी का ह शब्द, वो तमिल में ग प्रोनाउंस किया जाता है। सो क्या हो गया यहाँ पे, जब मैंने नाम बोला कि मेरा नाम कन्हैया लाल जैन है, तो दे स्टार्टेड कंगैया लाल जैन। ह पर्टिकुलरली दे कॉल इट ग। सो ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा था। देन आई आस्क्ड माय गुरु Mahavir Munot. I was very new to the Tamil language, and then I said, okay, because here there is no particular word called H, ha. So they will be calling you the Mahavir, they will be calling Magavir, or Mahesh, they will be calling Magesh. So, like that, there is a the pronunciation is there. So they told, okay, now onwards you do one thing, you make yourself as KL, that is more than sufficient. You need not to tell about Kanal Al Jain. And it was so they everybody, I started myself calling as me KL, and the others followed. And it was now that name has been made as KL. That is the full form of the KL. Yes, friends, the secret is out. That is, you know now who is KL. It is Kanhaiya Lal Jain, a nice person who's sharing the space with us, and of course, one with humor and intelligence as well. Dear sir, how do people of the earth remember you? And why should people remember Kanhaiya Lal Jain? किस बात के लिए आपको याद करना है और क्यों? अच्छी बात, यस, याद करना है तो एक एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट तो मेरा जो ह्यूमर है वो ग्रेट है, और वो ह्यूमर भी ऑन द स्पॉट है, और स्पॉन्टेनियस मैं क्रैक जोक करता हूँ। तो जब भी वो लोग याद करते थे, याद करेंगे, तो पहला तो यही बोलेंगे कि यस, केएल था, वो हमको हंसाता था और मजे कराता था। मतलब दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू हेल्प। सेकंड, दूसरा ये है कि मेरा जो हेल्प करते हैं हम लोग, कि यस, जो दूसरों को सहायता करना, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे मेरा प्रोफेशनल क्षेत्र हो, चाहे वो मेरा धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे मेरा वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे मेरा पारिवारिक क्षेत्र हो, चारों क्षेत्र में लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि यस, इनके ये लोग मुझे याद भी करें, तो इसी याद करें कि यस, वो अच्छा, मतलब हमेशा हेल्प करता था, वेदर इट इज फिनेंशियली, वेदर इट इज मैनुअली और मेंटली, और वेदर इट इज फिजिकली। So by the three ways, I always make sure that I help each the other persons. We have a lot of the projects, what we call. जब मैं युवक परिषद का प्रेसिडेंट था, then I remember we have conducted around 150 I camps. और हाँ, उस टाइम में 2007 नहीं, 2012 से 2000 नहीं 2003 से लेकर 2007 तक wonderfully we worked good for society, and
around 10,000 of people eyes were checked, and out of that maybe 100 or 700 or 800 something, I don't remember the exact figure, but operations भी हमने conduct किए थे. So that is the second रोटरी में है. तो रोटरी में भी आप देखिए कि हम लोग हमेशा डाउन ट्राउडन की हेल्प करना ज्यादा पसंद करते हैं. अभी भी हमने एक लास्ट ईयर यहाँ पर एक ब्रेस्ट कैंसर का हॉस्पिटल के लिए, जो कि एकदम लेबर क्लास जो लोग है, नीचे स्तर के जो लोग हैं, जिनको रियली कैंसर डिटेक्शन की जरूरत है, वहां पे हमने एक मशीन डोनेट की है, वहां पे लगाई है. इट कॉस्टिंग अराउंड 1 करोड़ रुपीस. ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 1 करोड़ रुपीस का था, और हमने वहां पर मशीन लगा दी है. और अभी वहां हम लोग वहां देख रहे हैं कि कम से कम मतलब मंथली हमको 35 से 40 पेशेंट उस सेंटर में आते हैं. और चेन्नई कॉरपोरेशन का सेंटर है, वो हॉस्पिटल है, उस सेंटर में मॉनिटर करते हैं हम लोग और देखते हैं कि उसमें से. और उसके ऊपर की बात आप ये देखिए कि वो उन लेडीज को पता भी नहीं था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है. जब हमने डिटेक्शन करके उनको बताया, तो उसमें से 2 जन तो पॉजिटिव निकल गए. मतलब आउट ऑफ 35-40 एवरेज हमको 1 या 2 पेशेंट ऐसे मिलते हैं, वो एकदम पॉजिटिव हो जाते कैंसर. फिर उनका केयर करना, उनको अगर आप अर्ली स्टेज पर आप कैंसर डिटेक्ट कर पाते हो, तो आपका क्यूर भी जल्दी हो जाता है. लेटर स्टेज में इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड यू नो कैंसर इज ए जानलेवा बीमारी है. उसके लिए मुझे अगर याद भी करें और ये देखें तो कि बस एक ही है. पहला ह्यूमर के लिए याद करेंगे, दूसरा सबको सहायता करता. ये 2 चीजें अगर याद करें तो अपना जीना, जो मेरा जीवन है, वो जीवन सफल हो जाता है. जी, sir. That's really very nice to remember people who have made them laugh, made them feel good, and as well helping nature. That's really very nice. Dear sir, आप ये प्रोजेक्ट में इतने you're so connected with the projects, your work, everything. Apart from this, have you ever taken a vacation, छुट्टी लेकर कहीं जाके आए हैं आप? अगर लिए हैं छुट्टी पर जाके आए, पर कहाँ गए थे? Can you share that? Yeah. Okay. Yeah. Generally, yearly once we make sure कि हम लोग छुट्टी लें, और I make a point कि yes, we'll go together. So मैं छुट्टी लेता हूँ. पहला जो हमारा टूर था, हम the good tour. It was 15 days. We had a holiday in Srinagar, Jammu and Kashmir, वैष्णो देवी, then पहलगाम, गुलमर्ग, शोनमर्ग, वो पूरा जो किया था. That is very good holiday tour. We had 15 days and around 50 of our friends. We always go together with friends. So बहुत बढ़िया हमारा हॉलीडे टूर हुआ. उसके बाद में हमारा जो ईयरली होता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स है, वो ये श्योर करते हैं भाई 3 दिन या 4 दिन के लिए हम लोग रिसोर्ट जाते हैं. और कभी केरला जाते हैं, कभी कूर्ग कर्नाटका जाते हैं, कभी ऊटी जाते हैं, कभी कोडेकनाल जाते हैं. ऐसे अलग अलग स्थानों पर एवरी ईयर हम लोग ये प्रोग्राम बनाते ही रहते हैं. और आई मेक श्योर, हमारे एक दोस्त है अशोक मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वी गो टुगेदर ओनली. तो हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि बस यस, काम हो गया भाई, अब तो थोड़ा सा रिलैक्स बनता है. तो 100% व्हाट यू से, ईयरली वंस और ट्वाइस इन ए ईयर, डेफिनेटली वंस बट ट्वाइस विथ फैमिली के साथ में सब एंजॉय करने के लिए, कभी 4 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी 15 दिन का टूर ईयरली हम लोग कर लेते हैं. That's really nice. Very nice. I really like that. Now, आप कश्मीर भी होके आए हैं, फिर केरला also, yes? Yes. And different places, yes. Kodaikanal and all of that. Dear sir, अभी आपको तमिल भाषा आती है सर आपको? हाँ, तमिल अब तो पूरी आ गई मैडम. यहाँ आते ही क्या 2 महीना हमने तमिल सीखा, और एक छोटी सी पान ब्रोकर की दुकान थी. क्योंकि जनरली तमिल अगर आप प्रोफेशन में रहोगे तो इतनी आपकी तमिल अच्छी नहीं हो सकती. तो सोचा कि यस, ऐसी जगह काम करें जहाँ पे आपको तमिल में ही बात करना पड़े कंपलसरी. तो फिर हमने 2 महीना एक मतलब पान ब्रोकर की दुकान पे बैठ के सब तमिल में बात किया. तो स्टार्टिंग में वो तमिल जो, बट इतना हो गया कि बेसिक वहाँ हो गया. टेक्निकल तो हम लोग मास्टर नहीं हो सकते, बट काम चलो सरकार आप बोलते हैं ना, वैसे काम चलो सरकार वाला पूरा लैंग्वेज हमको आ गया.
स्टार्टिंग से, मतलब इन द ईयर 90s when we shifted here 1990, so 1990 में ही हमने तमिल सीख लिया था मैडम। जी सर, जी सर, हाँ। दैट्स रियली नाइस। सर, आप खुद में क्या अच्छा लगता है? कौन सा गुण है आप में जो आपको खुद अच्छा लगता है कि भाई मैं हूँ जैन एंड आई लाइक दिस माई सेल्फ? हम्म। मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि फर्स्ट प्रोफेशन, जो कहते हैं ना कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो आई एम, पहला तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और आई डोंट सी द टाइम, आई सी दैट यस माय वर्क इज कंप्लीटेड। सो देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। पहला मेरा यही चॉइस रहता है। सेकंड चॉइस मेरा रहता है कि यस, जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो सोचता हूँ ठीक है, तो मैं अपने धार्मिक प्लेसेस जाना, वहाँ जाना पसंद करता हूँ। चाहे स्थानक हो, चाहे मंदिर हो, चाहे महाराज साहब जिनके दर्शन करने हैं, गुरु यात्रा हो, दर्शन यात्रा हो, ये सब, मतलब मेरा सेकंड चॉइस ये रहता है कि हम लोग इसके लिए थोड़ा सा जो भी मेरा फ्री टाइम रहता है वो ज़्यादा मैं अपने इस मंदिर दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, और नहीं होता तो भी मन में ऐसा होता है, घर में भी जब फ्री होता हूँ तो यही रखता हूँ कि यस थोड़ा सा फ्री हो गया, ठीक है, कुछ न कुछ धार्मिक किताबें पढ़ ली जाए, स्वाध्याय कर लिया जाए, और बस वही एक्टिविटी मेरी ज्यादा रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, दैट्स रियली नाइस। सर, अभी एक बड़ा सा प्रश्न, अगर आपको बड़ी सी लॉटरी मिल गई, मानते या नहीं मानते वो मुझे नहीं मालूम, अगर मिल गई सोचिए, तो क्या करेंगे उस इतने सारे पैसों के साथ, बड़ी जैकपॉट के साथ? हाँ और हाँ। उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? आ, ठीक है, पहले बात तो कि मैं लॉटरी में इंटरेस्ट नहीं रखता, ना कभी 1 रुपया भी हमने लॉटरी में लगाया है। बट हाइपोथेटिकली आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर लॉटरी लग भी जाए तो पहला काम यही होगा कि मन में यही इच्छा है कि एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, और ये है कि इतना, मतलब गरीबों के लिए जो एकदम फ्री निःशुल्क उनको सेवा मिले, और उनके लिए पूरी सुविधा मिले, और बस यही मन में इच्छा है। आएगा तो मन में एक ही इच्छा है, ये पूरा का पूरा अपने को सोसाइटी के लिए, और पर्टिकुलरली जिनके पास नीडी है, जो जरूरतमंद है, नीडी के लिए कुछ न कुछ हमको ये करने का मन में भाव रहता है। जी जी सर, जी सर, ऐसे कोई मूवी है जो अच्छा सोशल मैसेज दे, नाइस मूवी विद अ सोशल मैसेज? अगर आप सिनेमास देखते हैं तो कपिल का शो तो देखते हैं आप, इसके अलावा इफ यू सी एनी मूवी जहां पर अच्छा सा मैसेज समाज के लिए? यस यस, अभी जो लेटेस्ट जो मूवी देखी उसी का याद आ रहा है मुझे। अमिताभ बच्चन सर की मूवी है ऊंचाइयाँ। और रियली मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ उस मूवी से कि उन्होंने, मतलब इस एज में देखिए आप, और वो भी उन्होंने पहाड़ों की जो यात्रा की है, जो मानसरोवर, और उनकी जो बताया उन्होंने, पूरा पिक्चर ही उसके ऊपर भी बेस्ड था उनका। तो इतना बढ़िया लगा उसमें कि यस, एक वो जान देते हैं उसमें कि आपको भले आप एजेड हो गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? आपकी अंदर की इच्छा से, कि यस, इच्छा शक्ति मजबूत रखो। और सर आज आप देखिए, अमिताभ बच्चन सर अबव 80 एज के हैं, और जब अबव 80 एज के पहाड़ की यात्रा कर सकते हैं, वो चढ़ सकते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं, तो हम तो एकदम नॉर्मल है। अभी हमारी उम्र तो से 53 54 अभी चल रहा है, तो 53 54, तो ऐसा संदेश, अच्छा एक ऊंचाइयों पे जाने का संदेश। और ऊंचाई खाली ये फिजिकल ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सोचने वाला होगा, मूवी देखने वाला अगर सोचेगा, तो वो जिंदगी में भी आप ऊंचे बढ़ो, आप अपने प्रोफेशन में ऊंचे बढ़ो, आप अपने लाइफ के स्तर में ऊंचे बढ़ो, आप अपने धार्मिक कार्यों में ऊंचे बढ़ो, आप अपना जो जो जीवन का जो लक्ष्य है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए ऊंचे बढ़ो। ऊंचाइयां तो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको संदेश देती है। वेरी गुड पिक्चर। और हमेशा यही फॉलो करना चाहिए कि यस, कोई भी फील्ड में हो आप, कोई भी सेवा करो, चाहे प्रोफेशन करो, चाहे सामाजिक सेवा करो, कुछ भी करो, और आपका जो चूजन फील्ड है उसमें आप आगे बढ़ते रहो। ये संदेश उस पिक्चर में मिला। बहुत अच्छी पिक्चर थी।
जी सर, जी सर, उसका नाम दोहराइए प्लीज। अब ये कैन यू शेयर द नेम अगेन? ऊंचाइया। यस, वंस अगेन प्लीज। ऊंचाइया जो, ऊंचाइया। हाँ ऊंचाइया अभी पिक्चर आई थी ना। यस सर, हमने हाँ नहीं वो, देखा इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ ऊंचाइया पिक्चर है। और अभी अमिताभ बच्चन और चार बड़े एक्टर है उसमें। बहुत बढ़िया पिक्चर थी, मे बी अराउंड 6 मंथ और बिफोर इट वाज रिलीज्ड। यस सो डेफिनेटली वी विल वॉच दिस मूवी, क्योंकि बहुत सारी एक अच्छी मैसेज है कि भाई कौन से भी प्रोफेशन में हो आप, तो यू हैव टू गो अहेड एंड बी। उम्र की कोई बात नहीं है, लेकिन यू नो मनोबल का, बाकी मनोबल, लगे रहो। माइंडसेट, योर माइंड। माइंडसेट विल मेक यू अप इन योर लाइफ। यस सर, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच। सर, आप जब स्कूल में थे या अभी भी आपको रुचि है स्पोर्ट्स और गेम्स में? यस। हाँ स्पोर्ट्स में ऐसा था कि आई वाज वॉलीबॉल प्लेयर। और रेगुलर हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा सा एज के कारण से अब इतना वॉलीबॉल तो हम लोग नहीं खेल पा रहे, लेकिन बट वी यूज टू वॉकिंग हमारा एकदम रेगुलर रहता है। और मॉर्निंग वी गो फॉर वॉक एंड वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ वेल। सो स्पोर्ट्स तो हमेशा रहता है। हमारे बड़े भाई साहब शांतिलाल जी लुंकड़, जिन्होंने मुझे ये सीए बनने का मौका भी दिया और उन्होंने इंस्पायर भी किया मुझे। तो वो भी आज भी, मतलब उनका उम्र आज मेरे से 10 साल बड़े हैं वो। आज भी वो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो मैं ओह। उनको जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यस, यार अपना इसको, वो बॉडी आपकी एक स्पोर्ट्स बॉडी जैसी हो जाती है। और हमेशा आप एक्टिव रहते हो। सो आदमी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए। और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मतलब खेल में हमेशा रुचि रखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं। तो क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, साथ में वॉलीबॉल का काम हो जाता है। और वॉकिंग रेगुलरली करते हैं। तो एकदम फिट फिट रहने का हमेशा ध्यान रखते हैं। जी जी जी, आपने क्रिकेट कहा सर, तो जब भारत हार गई ऑस्ट्रेलिया से, आपको कैसा लगा? नहीं वो तो, मेरे को क्या, पूरी 140 करोड़ को धक्का लगा। इट वाज रियली, हम तो एक बिफोर जब वो मैच फिसलने लगा था, तभी ऐसा लगा कि यस अब मैच हाथ से जा रहा है। जाते जाते ही हमारा तो मूड एकदम डाउन होता गया। और फिर निराश होकर हम लोग ने तो एक थिएटर में वहाँ पर प्रोग्राम था संस्कृति का, वहीं पे ये दी वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे। और जितने भी दोस्त थे सब इतने नाराज हुए कि यस, बहुत मतलब क्रिकेट तो क्रिकेट है, कह नहीं सकते क्यों खेल में एक जना जीतेगा और एक जना हारेगा ही। ये तो, लेकिन थोड़ा सा मतलब मन खटा हो गया। जी जी जी, हाँ आज तक भी है वो, हाँ आज हाँ, तक आज भी वो तक है। फीलिंग है कि भाई इतना 11 मैचेस जीत कर आ गए, लास्ट मैच हार गए, तो एक थोड़ा सा हाँ तो फीलिंग। वो एक इसमें व्हाट्सएप में जोक आता रहता है। वो चाय होटल में जब चाय पीने के लिए जाता है ना, तो बोलता है क्या गिलास में लेकर आया चाय, तो बोले कब तो ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई। जी जी, ओह दैट्स नाइस, वो भी एक जोक है, वाओ। जो, हाँ ब्यूटीफुल। मतलब अब वो उन्होंने वर्ल्ड कप से जोड़ दिया उसको जी कि जी यार कब तो ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई, कब अब इंडियन रेस्टोरेंट के पास कब भी नहीं है, मतलब जी वो जी जोकिंग स्टाइल में बोलते हैं। जी। आपने सर, यू गिवन अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कॉमेडी नाउ। वो तो ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई कब, तो इट्स ह्यूमर, ब्यूटीफुल ह्यूमर। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे जगहों में, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, ह्यूमर करते हैं एक लोग, तो ह्यूमर किसी को हर्ट करने में, किसी को ठेस पहुंचाने में, और लोग उन पे हंसते हैं, तो ऐसा ह्यूमर एनकरेज नहीं करनी है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थोड़े बच्चे क्या है, सुसाइड भी कमिट कर चुके हैं, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा हंसी मजाक कर दिए तो नेक्स्ट डे एब्सेंट रहते हैं, आते भी नहीं स्कूल को। थोड़े लोग, थोड़े बच्चे भी, दे एंड देयर लाइफ अनेबल टू टेक दैट प्रेशर। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग सर? या कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब ह्यूमर करते हो तो पर्टिकुलरली आदमी पर ह्यूमर नहीं, मतलब यू शुड नॉट से दैट दैट पर्सन हैज मेड इट लाइक दैट। जब पर्सनली अगर आप किसी को हर्ट करते हो, पर्सनली उसके ऊपर जोक करते हो, वो गलत है, वो बुरा है, वो नहीं करना चाहिए। आप सिचुएशन पे करो। आप सिचुएशन, आज बरसात का है, आज प्यार का मौसम है, आज मतलब गर्मी का मौसम है, आप गर्मी पे करो, कब पर करो।
लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आप कभी कॉमेडी मत कर। और हम लोग ये कभी भी ये नहीं करते, दोस्तों में जरूर मजाक करते हैं, लेकिन मजाक करने से पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो अगले वाला जो है वो मजाक सहने के लायक है कि नहीं। पहले आप उसको वो टेस्ट करना कि यस, हाँ वो भी वापस मजाक किया तो समझ लेना यस ये मजाकी है, और अपनी बात को ये मजाक में लेगा। वो जो मजाक में नहीं लेता है और वो जो सीरियस ले लेता है, तभी ये जो आप बता रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो ये ध्यान रखने योग्य चीज है कि आपको मजाक करने से पहले किससे मजाक कर रहे हो, कहाँ मजाक कर रहे हो, कैसे मजाक कर रहे हो, किसके साथ में आप मजाक कर रहे हो, वो सब बातें आपको, आपकी आपकी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसको बराबर ध्यान में रख के करना, तभी मजा आता है मजाक में। बाकी अदरवाइज आपने जैसा बोला ये 100% ट्रू है। व्यक्ति विशेष को लेकर कभी हम लोग मजाक मजाक नहीं करते। और अगर मान लो कैसे कभी कभार बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं कि भाई व्यक्ति विशेष का नाम ना हो तो ज्यादा, लेकिन क्या करें, जबान फिसल जाती है या कभी आ भी जाता है, तो अंत में हम यही कहते हैं कि मुझे क्षमा कर देना अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो या किसी को खेद पहुंचाया हो, तो प्लीज फॉरगिव मी। दैट इज हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं, हाथ जोड़कर हम लोग क्षमा क्षमा याचना कर लेते हैं। Jason, beautifully answered. Thank you very much. A big message here. And yes, friends, humor in the right way, in the right situation, with the right kind of people, and not to hurt or harm anybody. Wonderful. I was waiting. पूछना starting से पूछना था मुझे, तो वो मन में खटक रही थी कि भाई चलो मैं पूछ ही लूं मैं अभी, तो पूछ लिया because you brought the cup over there. Yes. हाँ, Yes, that was a beautiful situational comedy that Sir shared just now. And of course, a great message on not to make fun of your friends. Yes. Dear sir, किस तरह के बदलाव आप देखना चाहेंगे इस दुनिया में? अच्छा सवाल पूछा है कि किस तरह के बदलाव आप देखना चाहते हैं। बदलाव, फर्स्ट तो आदमी की सोच में बदलाव आना चाहिए। जो सोच, सही सोच और सही दर्शन, ये आपको अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। तो जो बदलाव हम लोग सोच रहे हैं या जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि मैत्री भावना हो, सब जगह कोई भी आपस में लड़ाई न करे और किसी को न मारे न कूटे। ये जो सोच है, ये जो भावना है, इस भावना में हम बदलाव लाना चाहते हैं कि पूरा जो विश्व है, जैसा कि हमारे धर्म में भी बताया कि वसुदेव कुटुंबम, जो इन्होंने अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी यही संदेश दिया है कि वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब पूरा पूरा जो संसार है वो एक परिवार है। तो ये जो संदेश है, अगर इस संदेश को अगर आप हम लोग अच्छी तरह से ले लें, भावना से, शब्दों से और मन से, तीनों से अगर अपन इसको मन में ये ले लेते हैं ना कि भाई यस, तो ये जो लड़ाई, जो मारपीट, जो दूसरी गलत एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये सब बंद हो जाएगी और कोई भी युद्ध युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। और वैसे भी तो मैं जैन हूँ और अहिंसा में हम लोग पूरा विश्वास है, पूरा अहिंसा परमो धर्म हम जिसको कहते हैं उस, तो अहिंसा नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं हो, कभी झूठ नहीं बोले, कभी चोरी नहीं कर रहे, और सबकी सहायता करते रहे, बस इसी, यही जो बदलाव है, ये जो सोच का बदलाव है। आप जब सोच बदलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मतलब जैसे मन में जो विचार है वही आपका परिणति होता है, उसी का ही एक्शन कन्वर्ट होता है उसका। तो अच्छी सोच रखें, बस उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से तन मन और धन तीनों जो भी आप बोलते हैं कि ये तीनों से आपका हर कार्य जो वो अच्छा रहे, अच्छा अच्छी सोच रखें तो कार्य भी आपका अच्छा रहेगा। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद sir. You shared that message beautifully. Very nice. The change should be in our mind and in our heart, and no more violence, and pure love and care in the universe. Yes. Yes sir. I really like that because we're all one. हम सब एक ही है. जैसे आपने कहा वसुदेव कुटुंबम, you said that we all are one in this beautiful earth, and one fine day we all will leave this earth and go away.
So let's keep it safe for the younger generation too and pass on positive values. Dear sir, आपके जो एक्सपीरियंस, इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ, क्या आप ये बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं सर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? अंतर है उसमें, आपने कहा हार्ड वर्क स्टार्टिंग में, आई हर्ड, यस, सो नाउ इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? ऐसा कुछ है या चीज, या एक वहमी है वो मन में? नहीं नहीं नहीं, 100% देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अभी जो जमाना है वो स्मार्ट वर्क का जमाना है। और जब हमारे जमाने में, जब ये मैं बातें कर रहा हूँ सर, आप मैडम आपको नहीं, जब हम लोग सीए पढ़ रहे थे 1988 से लेकर 91 की बात बता रहा हूँ। दैट टाइम देर वर नो कंप्यूटर्स, नो टेक्नोलॉजीज, और हम लोग उस समय यही हमारे मन में था कि भाई सीए क्वालिफाई करना है। उस टाइम में हार्ड वर्क वाज दी नेसेसिटी। ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, और टेक्नोलॉजी चेंजेस आने से कंप्यूटर आ गए, स्मार्टफोन आ गए। आज का जमाना जो है वो आपको, जो हम उस समय में काम करते थे और आज काम कर रहे हैं, रात दिन का फर्क है उसमें। उसमें हार्ड वर्क था उस टाइम में, अभी स्मार्ट वर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं। पहले हमको एक टोटल लगानी थी, एक ट्रायल बैलेंस हमको टैली करने के लिए दिया जाता था। इट टुक अस मे बी अराउंड 1 day। वेरी बिग कंपनीज व्हेन वी गो फॉर ऑडिट, एंड जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनका हम लोग ऑडिट करते थे। जब ऑडिट करते थे तो उनका जो टोटल होता था, वो टोटल करने में भी टाइम लगता था, ट्रायल बैलेंस टैली करने में हमको टाइम लगता था, और एक दिन हमारा पूरा उसी में काम में लग जाता था। लेकिन आज देखिए, आज का जमाना सब कंप्यूटराइज जमाना है, टोटल आपके पास टैली है, अब आपको स्मार्ट वे में वर्क करना है। सो देर इज ए लॉट ऑफ चेंज। पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत रात दिन का फर्क है, अंतर है। और 100% आपने जैसे पूछा, यस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क है। आप आज आपके पास पॉसिबिलिटीज है कि आप स्मार्टली जब काम करते हो, तो जो ज्यादा टाइम पहले लगता था, आप स्मार्ट करते हो तो अब एक मिनट का काम है। जो पहले एक दिन का काम होता था, वो आज आप 1 मिनट में कर सकते हो। इसी का ये जो डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस हुआ, ये जो काम करने का स्टाइल का जो डिफरेंस हुआ, आपके सोचने का डिफरेंस हुआ, नहीं इसको ऐसे करूं तो मैं जल्दी कर सकता हूं, ये जो भावना है, इस भावना को आप स्मार्ट वर्क कहते हैं। 100 लॉट ऑफ डिफरेंस है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हमको यही करना चाहिए कि आप स्मार्ट वे में काम करोगे तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे। यस सर, परफेक्ट परफेक्ट, आई रियली लाइक द वे यू पुट इट, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। देर इज, जैसे दिन और रात, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। एंड ऑफ कोर्स अर्लियर टाइम्स अलग था और अब अलग है। जो एक Yes. दिन लगती थी वो काम करने के लिए 1 मिनट भी हो सकता, आज बस एक ही मिनट, एक पल, एक सेकंड भी हो सकता, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन द वर्क इज डन। Yeah. Beautiful example. And so my youngsters out there and the senior citizen, middle-aged people, you should take up technology, give importance to technology, and do work in a smarter way. Of course, you should stay safe when you're connected online. Dear sir, any dream projects? I like, Yeah. yes. जैसा मैंने बताया ना कि अभी आई एम ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जोधपुर एसोसिएशन, और आई एम ए पास्ट प्रेसिडेंट इन संस्कृति आल्सो। तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट यही दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी मुझे एक हॉस्पिटल बनाने की मन में इच्छा है। और ऐसा है कि मतलब जो गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल अगर हम लोग बनाकर दे देते हैं, और ताकि क्या फ्यूचर में भी सबको उससे सहायता मिले, और उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। और अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू अचीव। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। Yes, sir. It's a beautiful dream project to give back to the society in a beautiful way, to construct a hospital. और सर आपने ये कहा कि भाई ये एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, सभी इकट्ठा होके जुड़ के करनी है। तो अब सभी साथ चलना है इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट कामयाबी लाने के लिए। तो सर ये पूछना है मुझे कि आपके साथ अच्छे फ्रेंड्स जो है, योर फ्रेंड्स, जो दोस्त हैं आपके साथ, कितने सारे दोस्त आपके साथ खड़े हैं
right from your childhood school days till date? Would you like to name the best friends in your life who are thinking on the same lines like you? हाँ, जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में जो है, जो फर्स्ट जो नाम मेरे आ रहा है, तरुण मेहता, जो मेरा दोस्त है, वो हमेशा सपोर्ट करता है कि यस, ये बढ़िया प्रोजेक्ट है और लेट अस डू दिस प्रोजेक्ट। सेकंड नाम मेरे दिमाग में आता है, हमारे डॉक्टर महेंद्र है, वो ऑर्थोपेडिशियन है और उनका हमेशा सपोर्ट रहता है, और डॉक्टर महेंद्र भी बोलता है कि यस केएल, दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वी मस्ट मूव फर्दर। तीसरा नाम मेरे आता है, वो है हमारे सेक्रेटरी महोदय देवेंद्र सिंह भी है। ये प्रोजेक्ट हमने हमारे पास रेसिडेंट हैं उनके साथ भी डिस्कशन किया। फिर नरेंद्र जी श्रीमाल है, काफ़ी जने के नाम याद है। तो ये सब इस प्रोजेक्ट में मुझे 100% मुझे कॉन्फिडेंस है। हमारे एक और मित्र हैं, शांति ललवानी है, सुरेश आंचलिया है। ये सब इतने सपोर्टिव हमारे मित्रगण हैं, जो कि यस, इस प्रोजेक्ट में डेफिनिटली साथ देने वाले हैं। मतलब बिना पूछे, उनको पूछना भी नहीं है, और वो 100% श्योर कि यस केएल क्या चाहिए, वी आर रेडी। ऐसे हमारे ये सब मित्रगण हैं, और डेफिनेटली पूरे जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो डेफिनेटली पीपल कम फॉरवर्ड। अच्छे-अच्छे दोस्त जो है, दोस्त के साथ में पूरा समाज हमारे साथ में है। तो जितने भी क्लाइंटेल है वो भी हमारे साथ में है। लग रहा है ऐसा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट में भी 5 इयर्स डाउन द लाइन, बस समय की बात है, लेकिन 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये काम हो जाएगा। Yes, I like the confidence. 100% हो जाएगा. It's a 5-year project. हाँ। Definitely. मेरे मन में ये प्रश्न आया सर, कहाँ पर, या ये अपना तमिलनाडु में खुलना चाहेंगे या राजस्थान में, कहाँ पर? नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु. तमिलनाडु, वी आर That's really nice. Wonderful, sir. That's really great. And thanks to all of those people who are with sir, all his friends and well-wishers. So hope that this project really achieves success and a beautiful hospital is built for the benefit of the common man. Dear sir, अक्सर देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है भारत में और apart from India, there are many senior citizens who have been abandoned by their own family members. उनके पास कुछ सेविंग्स कुछ भी नहीं है, जो भी था बच्चों के ऊपर खर्च कर दिए, उनके पढ़ाई पर, खाना पीना, एवरीथिंग। अंत में कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। पेरेंट्स, इट कैन बी मदर और फादर, हाथ में अभी कुछ भी नहीं है और कोई रखना भी नहीं चाह रहे ऐसे पेरेंट्स को जिनके हाथ में पैसे नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स आकर बस स्टॉप्स, पब्लिक स्पेसेस में अबैंडन हो चुके हैं, या तो सीनियर सिटीजन होम्स में है। They are there now. As you belong to the economic sector, being a chartered accountant and all of that, concerned with finance, what advice you would like to give to all of us, हम सभी के लिए, कि भाई सेविंग्स कितना जरूरी है, कितना सेविंग्स करनी है। ये हालत नहीं है ना, हम इस उम्र में आकर बेसहारा बने कि भाई हमारे सब कुछ चले गया, ना हमारे बच्चे तैयार है रखने के लिए, ना हमारे रिश्तेदार। या ये अच्छा आपने सवाल पूछा कि सीनियर सिटीजन को क्या-क्या सुविधा या क्या-क्या बचत पहले ही से ही करके रखनी चाहिए। पहला तो ये है कि मतलब स्टार्टिंग से कि हैबिट ऐसा डालिए कि व्हेन यू आर स्टार्टेड अर्निंग, मे बी 25 और 30 इयर्स व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, तो उसमें से पार्ट हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सेव करना, ये कंपल्सरी आप में अंदर ये रख दीजिए। तो कंपल्सरी सेविंग करना फर्स्ट ज़रूरी है, और बुढ़ापे का साथ जो आप बता रहे हैं, बुढ़ापे में वही साथ देगा कि अगर आपके पास कुछ धन हो, कोई साथ दे या नहीं दे, कम से कम आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से आप गुज़ार सकें। दूसरा जो है कि बुढ़ापे में कि जो भी आप अपनी जो संपत्ति है, जो मे बी इट इज़ अ लैंड एंड बिल्डिंग, मे बी योर फ्लैट्स और मे बी योर डिपॉजिट्स और मे बी योर गोल्ड एंड एवरीथिंग। So make sure that you create a will। जमाने के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको चलना है, तो आप अच्छी तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। ध्यान ये रखें कि आप अपनी जितनी भी सेविंग्स है, डिपॉजिट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है या प्रॉपर्टीज़ है, उसको आप
ये लिख के देंगे कि भाई आपको अभी मैं किसी का, जैसे आप अगर अपने बच्चों या बच्चियों के बीच में अगर डिवीजन भी करना चाहे, उनको देना चाहे, तो पहले मत दीजिए। ये की वजह, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस चीज को रखूंगा, और मुझे मेरे 100 वर्ष पहुंचने के बाद में आप है जो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको डिवाइड करना है, इक्वली आपको डिवाइड करना, तो आप इक्वली आप डिवाइड कर दो, या विल लिख कर जाओ कि यस, कि भाई ये संपत्ति इसको देनी है, वैसे देनी है। ऐसा करने से आप एक तरफ से एकदम आप श्योर ये रह जाओगे, आप अपने आपके बच्चे जो है आपकी सेवा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। आप ये मत सोचिए कि वो जैसे कि अपने पास कुछ नहीं, अब इनके पास है नहीं, बच्चे ये सोचने लग गए हैं कि मेरे भाई माताजी पिताजी के पास कुछ है तो है नहीं, अब इनकी सेवा करके मुझे क्या फायदा। ये जो भावना, ये गलत भावना आ गई समय के साथ। ये क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि उनके जो संस्कार है ना, संस्कारों में कहीं कहीं ये कमी रही होगी, कि जैसे ये भावना अभी ज्यादा दिखने को मिल रही है, तभी माँ बाप को वो लोग वृद्धाश्रम में ले जाकर वहां पर वो भर्ती करवा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पहले आप डिविएशन नहीं करें, और जब तक हूं तो डेफिनेटली ये जो भावना, गलत भावना जो पैदा हुई है, वो भावना रुकेगी, बच्चे आपकी सेवा करेंगे और रखेंगे। तो सेविंग करना भी जरूरी है, और बचत में भी रखना है, और दूसरा ये ध्यान रखें कि आप अभी कुछ भी पार्टीशन नहीं करेंगे, कुछ भी डिवीजन नहीं करेंगे, जब तक मैं और मेरी वाइफ जो भी है, या वाइफ है तो उसका हस्बैंड है, भाई हम जब तक दोनों हैं, जब तक हम इसका उपयोग करेंगे, ये हमारे भविष्य के लिए रखी है, और ये हमारे 100 वर्ष पहुंचने के बाद में ये संपत्ति सब आपकी ही होने वाली है। आप इसमें कोई, आप इसमें संशय न रखें, और ऐसे अच्छे संस्कार भी अपने बच्चों को दें, ताकि क्या है, वो भी आपको इस लेवल तक, ये जो मजबूरी कहते हैं ना, इस मजबूरी लेवल तक अगर आपको न लेके जाए तो ज्यादा ठीक है। संस्कार भी दें, और साथ में ये भी ध्यान रखें, बचत भी करें, और जो भी है आप अवश्य कानून के हिसाब से जो विल लिखी जाती है, वसीयत लिखी जाती है, राइट ए विल एंड कीप इट सेफ wherever you want, whether you are comfortable with your advocates, deposit with your advocates. When you are comfortable with your chartered accountants, say deposit with the chartered accountants. Make sure that you register your will and keep everything very clear. तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी ये जो समस्या है, ये थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। पूरा ये तो नहीं कह सकता कि ये समस्या पूरी खत्म हो जाएगी, खत्म तो समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक इसमें रुकावट आएगी, और रुकेगी ये, और कुछ समस्या कम होगी, इतना मेरा इसका विश्वास है। तो ये मैं 2 एडवाइस देना चाहता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए भी, और जो जो फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है उनके लिए भी, इन बातों का आप जरूर जरूर ध्यान रखें। जी sir, thank you sir very much, thank you very much. Dear sir, we'll come from the serious to the different zone.